Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed over what is meaning by the indexing and abstracting, and in which we try to understand the procedures and methods of abstracting and indexing. So we have been also discussed what is meaning by the abstract and index, and after that we saw that how we can prepare the index and abstracting. Okay, now we are watching today in lecture our sixth unit. The title of this unit is given management. Okay, so in the last lecture we discussed on fifth unit, and this unit has been finished in the last lectures. Now today we are watching, we have started the management sixth unit. Okay, so let's see that one by one, what is meaning by the management principle, function and school of thought. Okay, so if we are go through our whole syllabus, then we will understand what kind of the subject are included in our syllabus. So library and information science is the core subject, main subject of our syllabus, and management is taken from outside to manage the library, how to manage the library, to learn how to manage the library. And after that, research is also taken from outside to learn how to do research in our field. And ICT, information communication technology, this has been also taken from outside to learn how to implement computer technology in our subject, in our field, practically in our library, for doing or conducting the library functions. As well as communication is also taken from outside to learn how to make the communication between library staff and library users. Then it will improve the communication between two, and it will use the effective it will increase the effective use of library. Okay, and in this way different types of subject we have derived from outside for develop our subject. And management is one of the most important subject we have been learned, which is taken from outside. But the question is arise in front of us, that what is the benefit of management subject to our subject. If we are consider in today's age, management have a lot of importance. Each and every field is need मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट को बहुत ही महत्व प्राप्त हुआ है आज के ज़माने में, और हर एक फील्ड में मैनेजमेंट की ज़रूरत है आज. और इसीलिए हमारे फील्ड में भी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, प्रैक्टिकली जब हम लाइब्रेरी का यूज करते फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, तो हमें हर पल, हर प्लेस, हर पद पर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है.
तो मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है इसी को हमें सीखना है लाइब्रेरी में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रैक्टिकली लाइब्रेरी में करना है। एग्ज़ाम में तो इसका उपयोग होगा ही, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लाइब्रेरी में इसका यूज करेंगे तो इसका सही मायने में इस्तेमाल होगा, सही मायने में उपयोग होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट यानी कि क्या, उसकी थीरीज कैसी है, उसकी फंक्शन क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसको स्कूल ऑफ थॉट क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट थिंकर कौन है, उसने कौन सी थ्योरी फॉर्मुलेट की है, और मैनेजमेंट के अलग अलग जो फॉर्मूले है, मॉडल है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, तो आज यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट यानी कि क्या। तो मैनेजमेंट इस शब्द की जो उत्पत्ति है, तो मैनेज इस शब्द से हुई। तो मैनेज करना यानी कि क्या, इस शब्द से इसका मीनिंग समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। मैनेज, तो इसका जो मीनिंग है मैनेज करना, व्यवस्थापन करना। ओके, दिस इज द वर्ब, और उससे एक नाउन तैयार किया गया मैनेजमेंट। ओके, तो उसको हम नाउन बोलते हैं व्यवस्थापन, यानी कि व्यवस्थापन करने व्यवस्था करने यानी कि व्यवस्थापन करने यानी कि व्यवस्था करने। ओके, जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। घर में सभी चीज़ें स्कैटर है, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है, और जब हम घर में एंट्री करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सब स्कैटर है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। तो इसी जगह पे बैठना या रहना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं फिर, वो सभी चीज़ें मैनेज करते हैं, यानी कि जो चीज़ जहाँ से हमने ली है और जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ पर हम रखते हैं, ताकि जब हम जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े वो वही जगह पे हमें प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं फिर, किचन की सभी चीज़ किचन में लगा देते हैं, बेडरूम की चीज़ सभी चीज़ बेडरूम में लगा देते हैं, हॉल की चीज़ सभी हॉल में लगा देते हैं। तो इस तरह से नीट एंड वेल हमारा घर दिखने लगता है फिर। तो उसे मैनेज कहते हैं और इसको मैनेजमेंट कहते हैं, और हर दिन ऐसा ही हमारा घर दिखने लगे तो हमें भी अच्छा लगता है और बाहर के जो लोग आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये जो सभी चीज़ें हमने अभी आपको बताई और की, इसको मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको मैनेजमेंट हम कहते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर लाइब्रेरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइब्रेरी में सभी चीज़ें स्कैटर है और कोई भी चीज़ जगह पे नहीं मिल रही है, बुक्स और जर्नल मिक्स है, पीडी थीसिस मिक्स है, और ऐसे में यूजर जब आता है तो बुक लेने, तो वो तो कन्फ्यूजन होता ही है, हम तो कन्फ्यूजन ही होते हैं, लेकिन जो आता है बाहर से वो भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो चला जाता है बुक न मिलने के कारण। तो इस तरह से जो लाइब्रेरी में काम करते हैं एज स्टाफ करके, वो भी खुश नहीं होते, वो भी जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है लाइब्रेरी में, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, और जो यूजर आते हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होते। ओके, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है यानी कि क्या, कोई भी फंक्शन अच्छी तरह से कैरी आउट नहीं होता है, यूजर लाइब्रेरी में आकर उसे जो बुक चाहिए वो नहीं मिलती है, इसलिए वो भी सेटिस्फाई नहीं होता है। जो लाइब्रेरी में स्टाफ काम कर रहा है वो यूजर की जो
रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने में अनेबल होता है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता है, और जो इस तरह के वातावरण में काम करता है उससे भी वो खुश नहीं होता है। ओके, तो इसका एक सारांश हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि लाइब्रेरी का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो वातावरण है वह अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। लाइब्रेरी में मैनेजमेंट न होने की वजह से लाइब्रेरी में कोई भी फंक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, कोई भी सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये सब इसके कारण है। तो मैनेजमेंट न होने के कारण क्या क्या हो सकता है? सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं की जा सकती, यूजर सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जो काम करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। लाइब्रेरी का जो फंक्शन है कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, एक्विजिशंस, सर्कुलेशन, ये भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। ओके, तो एक मैनेजमेंट न होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? सभी जगहों पे, सभी सेक्शन में, सभी फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इससे ये उदाहरण से हमें समझ में आता है। और यही उदाहरण हम थोड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यदि वही लाइब्रेरी को अच्छी तरह से हमने क्लासिफाइड किया, क्लासिफिकेशन लगाया, कैटलॉगिंग अच्छी की, इंडेक्सिंग अच्छा किया और अदर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड की, इनफ स्टाफ, यूजर एजुकेशन, ओके, और इंटरनेट फैसिलिटी यूज करके ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, सभी जगहों पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑटोमेशन किया, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव हमने लाइब्रेरी में की। और जो बुक्स जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या हो सकता है? लाइब्रेरी का मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। ओके, और लाइब्रेरी का मैनेजमेंट इम्प्रूव होने के बाद कोई भी यूजर यदि लाइब्रेरी में आता है तो उसे प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो इससे वह सेटिस्फाई होता है, और जो स्टाफ लाइब्रेरी में काम करता है सर्विस प्रोवाइड करके यूजर को खुश दे कि वो भी सेटिस्फाई होता है। और फिर लाइब्रेरी का जो फंक्शन है, एग्जीक्यूशन है, सर्कुलेशन है, वो स्मूथली चलता है मैनेजमेंट की वजह से, इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से। ओके, तो लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं, हमें लाइब्रेरी के बारे में मैनेजमेंट देखना है, और मैनेजमेंट दूसरा एक होता है और कंपनी के बारे में। ओके, और कंपनी, इंस्टीट्यूशन भी हम या उसे कह सकते हैं। तो लाइब्रेरी एक छोटी कंपनी होती है, छोटी इंस्टीट्यूशन होती है। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट होता है, और फिर लाइब्रेरी में भी वह इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, तो मैनेजमेंट जो देखता है तो उसे मैनेजर कहा जाता है, जो मैनेज करने का काम करता है उसे मैनेजर कहा जाता है। ओके, तो कंपनी में मैनेजर होता है काम करने के लिए। ओके, अलग अलग मैनेजर होते हैं, सीओ वगैरह, ऐसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। सीओ, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेक्शन मैनेजर, ओके, ऐसे बहुत सारी पोस्टिंग होती है। और यहाँ पर हम देखें लाइब्रेरी में कौन मैनेजर होता है, तो लाइब्रेरियन मैनेजर होता है। ओके, तो लाइब्रेरी का सभी प्रकार का जो काम है, मैनेज करने का काम लाइब्रेरियन करता है। ओके, तो जिस तरह से मैनेजर कंपनी में मैनेज करता है, ऑल एक्टिविटीज, ऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है। ओके,
तो उसी तरह से लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में ये सब काम करता है। ओके, तो लाइब्रेरी में अलग अलग जो फंक्शन होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कोऑर्डिनेशन अमंग सेक्शन, स्टाफिंग, ओके, और अदर भी फंक्शन हम लाइब्रेरी के ले सकते हैं। ये सभी कार्य हमें लाइब्रेरी में करने होते हैं। तो एज ए लाइब्रेरियन करके ओनली हमारा सब्जेक्ट हम जब पढ़ते हैं या कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं टेक्निकली, तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं। तो उदाहरण कौन सा ले सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। केवल हमारा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना काफ़ी नहीं है। तो जैसे ही टीचर भले ही अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, टैलेंट हो, उसकी टीचिंग अच्छी हो, लेकिन जब वो क्लास में जाता है और क्लास में मोर देन 60 स्टूडेंट होते हैं, क्लास फुल होता है, लेकिन जब वो स्टेज पर आता है, पढ़ाने लगता है, उसकी टीचिंग वगैरह अच्छी है, बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन क्लास मैनेज करना उसे नहीं आता। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे मन लगाकर सीखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाते, क्योंकि क्लास में एक पजल होता है, यानी कि जिसे हम एक बच्चे बोलते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, तो उस टीचर को क्लास मैनेज नहीं करना आना, सबको शांत कराना उसे नहीं आता, क्योंकि क्लास मैनेजमेंट उसे नहीं जमता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, भले ही उसकी टीचिंग अच्छी हो, इफेक्टिव हो, लेकिन मैनेजमेंट न होने की वजह से बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या ग्रास्प नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना अलग बात है और मैनेजमेंट आना ये अलग बात है, यह दूसरी बात है। ओके, तो हमें अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए, आप किसी भी प्रोफेशन में काम करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट आना चाहिए, लॉयर हो तो कोर्ट में सब मैनेज करना आना चाहिए, टीचर हो तो क्लास मैनेजमेंट आना चाहिए। ओके, और आप कोई अलग हो तो आपको वहाँ पर मैनेज करना आना चाहिए। कहने का मतलब, जब आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने सब्जेक्ट में, फील्ड में तो एक्सपर्ट होना ज़रूरी ही है, लेकिन मैनेजमेंट करना भी आवश्यक है, मैनेजमेंट आना भी आवश्यक है। ओके, तो इसीलिए हमारे प्रोफेशन में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमें मैनेजमेंट करना आ सके। ओके, और यदि हमें मैनेजमेंट नहीं करना आता तो क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, यह हमने टीचर के एग्जाम्पल से समझा। तो ठीक उसी तरह से लाइब्रेरियन का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लाइब्रेरियन भले ही अपने टेक्निकल चीज़ों में परफेक्ट है, अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है, अपने काम में परफेक्ट है, सभी चीज़ें इफेक्टिवली वो करता है, लेकिन मैनेजमेंट से पता नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शन चलते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग यूजर आते हैं, रीडिंग रूम में स्टूडेंट बैठते हैं, तो ये सभी उसको इसमें मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट
क्रिएट हो सकता है, भले ही वो कितना ही होशियार क्यों न हो, लेकिन मैनेजमेंट न होने की वजह से लाइब्रेरी का कामकाज बिगड़ सकता है। यदि बच्चे विदाउट परमिशन कोई भी एक्टिविटी करने लगे, मस्ती करने लगे, बोलने लगे, रीडिंग करने, तो लाइब्रेरी फंक्शन में प्रॉब्लम या दिक्कत होती है। तो ठीक उसी तरह से हमने उदाहरण समझा कि टीचर और लाइब्रेरियन यदि दोनों भले ही अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, लेकिन मैनेजमेंट न होने की वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो मैनेजमेंट कितना आवश्यक है, मैनेजमेंट और मैनेजर्स ये काम। ओके, तो लाइब्रेरी में मैनेजर का रोल लाइब्रेरियन प्ले करता है, और कौन से फंक्शन है लाइब्रेरी में, जैसे कि कंपनी में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि कैटलॉगिंग है, एक्विजिशन है, ओके, क्लासिफिकेशन है, फिर सर्कुलेशन है, सीरियल है, और फिर आगे अलग अलग कैटलॉगिंग, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन, सीरियल, और फिर रेफरेंस सेक्शन है। तो इस अलग अलग सेक्शन में अलग अलग एक्टिविटी चलती है, इसको ही हम सेक्शन या फंक्शन कहते हैं। कोई भी लाइब्रेरी भले ही ऐसी सेक्शन ना हो, लेकिन ये सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर मेजरली चलती है। कोई भी लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सर्कुलेशन होता है, सीरियल मैनेजमेंट होता है, और रेफरेंस भी होता है। ओके, तो लाइब्रेरी छोटी हो या बड़ी, किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी हो, किसी की साइज की लाइब्रेरी हो, तो उसमें मोस्टली ये फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन में कोऑर्डिनेशन, मैनेज करना, डिसीजन लेना, ये सभी चीज़ें लाइब्रेरियन को करनी पड़ती है। और यदि उसका मैनेजमेंट परफेक्ट है, तो ये सभी चीज़ें लाइब्रेरियन एज ए मैनेजर करके मैनेज कर पाता है। और यदि लाइब्रेरियन का मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है, तो लाइब्रेरियन एज ए मैनेजर करके फेल होता है। तो इस तरह से मॉडर्न एज में मॉडर्न लाइब्रेरीज हम देखते हैं। लाइब्रेरीज ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज की तरह फंक्शन नहीं करती है, अभी उसमें ऑटोमेशन है, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग स्टाफ है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग मशीन्स होती है, अलग अलग डेटाबेस होता है। हर जगह पे हमें कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है, और यूजर की संख्या भी अभी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम मैनेज करके ऑल दिस थिंग वी कैन डू। तो इस तरह से हम मैनेज करके सब सारी बातें यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैनेजर कंपनी में क्या क्या करता है, एज ए CEO, PM और SM करके ये हमने यहाँ पर देखा। और मैनेज से मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से मैनेजर्स, और कौन सी संस्था में वो मैनेजर करके काम करता है, यही हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, so let's see and go through this lesson note. There is a long history behind the evolution of management thought. Management is considered as the significant features of economic life of mankind throughout age. Management thought is regarded as evolutionary concept. It has developed along with it and in line with social, culture, economic and scientific institutions. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेजमेंट थॉट
का इवोल्यूशन हुआ है, रिवोल्यूशन नहीं। रिवोल्यूशन यानी कि झटपट, इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे। ओके, क्रांति और उत्क्रांति ऐसी दोनों वर्ड है। तो मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो, उसकी क्रांति एकदम नहीं हुई, क्रांति कह सकते हैं हम उसको, धीरे धीरे थॉट्स एग्जिस्ट हुए। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज significant features of economic life and mankind throughout age. Management thought is regarded as evolutionary concept. Evolutionary मतलब धीरे धीरे होने वाली। So management thought has its origin in ancient times. It is developed along with others socio-economic development. The contributor to management theory include management philosophers, management practitioner and scholar. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि क्या, इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा की है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में जब इकोनॉमिकल हम स्ट्रांग हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं, तब हमें सभी चीज़ें जो प्राइमरी सेकेंडरी जो नीड्स है हमारी, वो पूरी होने लगती है सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की वजह से। ओके, तो सोशियो यानी कि क्या, सोसाइटी, इकोनॉमिक यानी क्या, इकोनॉमिक। जिस तरह से सोशल जस्टिस हमें आवश्यक है, उस तरह से इकोनॉमिक जस्टिस भी आवश्यक है। दोनों के बारे में जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, contributed to management theory include management philosophers, management practitioner and scholar. Modern management is based on strong foundation laid down by management thinker from the past event. तो इस तरह से मैनेजमेंट फैकल्टी का निर्माण किस तरह से, कैसे, क्यों हुआ, ये यहाँ पर बताया है। तो बहुत सारे मैनेजमेंट फिलोसोफर है, मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर है, स्कॉलर है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, इस तरह से उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। व्हाट डज मैनेजमेंट थॉट मीन्स? थॉट्स मीन्स यानी कि क्या, जैसे कि हम थॉट बोलते हैं यानी कि विचार हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे एक आदमी विचार करता है, उसके विचार क्या है, इसके विचार क्या है, मेरे विचार क्या है, ऐसे हम बोलते हैं। तो विचार यानी कि क्या, एक विचार करने के एक सर्टन स्टेज होता है, सर्टन प्रोसीजर होती है, तो यहाँ पर उसको थॉट कहा गया है और उससे थ्योरी का जन्म होता है। ओके, तो मैनेजमेंट थॉट यानी कि क्या, मैनेजमेंट थ्योरी हम उसे कह सकते हैं। थ्योरी में हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट और मुद्दे सूद ली जाती है, स्टडी की जाती है, इसलिए उसको थॉट कहा जाता है। सो मैनेजमेंट थॉट रेफर टू theory that guides management of people in the organization. Initially, management theories were developed out of the practical experience of the managers in the industrial organization. Later on, managers borrowed ideas from several other fields of study like science, sociology, anthropology, etc. Okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट थॉट यानी कि क्या, उसको थ्योरी कहते हैं। गाइड्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह से लोगों को गाइड्स करते हैं। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिर वो कंपनी हो या लाइब्रेरी हो, उसको इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जिस तरह से मैनेजमेंट पर्सनल लेवल पर इम्पोर्टेंट होता है, उस तरह से इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी
मैनेजमेंट करना आवश्यक है। ओके, so later on managers borrowed ideas from several other fields of study like science, sociology and anthropology etc. तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मैनेजमेंट का नाम क्या होता है? Thinker, expert, writers on scientific. Later on, manager borrowed ideas from several other fields of study like science, sociology and anthropology. और जैसे कि मैनेजमेंट का उदय हुआ तो उसमें बहुत सारी आइडियाज बाहर से सब्जेक्ट से ली गई और उसको एक बेस बनाया गया और मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की गई। ओके, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, थिंकर, एक्सपर्ट and writer on scientific management have evolved useful principles to practical guidance for management operations. In this section, some basic principles provided by F.W. Taylor, Henry Fayol, Charles Bernard, respectively, in presenting scientific management, school, operational management theory, system theory are presented. Okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यहाँ पर महत्व दिया गया है। थिंकर, एक्सपर्ट, राइटर ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड यूजफुल प्रिंसिपल टू हैव प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑपरेशन। In this section, some basic principles provided by F.W. Taylor, Henry Fayol, Charles Bernard, respectively, representing scientific management, school, operational management theory and system theory are presented. तो ये सभी चीजें यहाँ पर की गई। तो टेलर्स की प्रिंसिपल क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट टेलर्स saw underlying the scientific approach to management may be summarized as follows. So according to Taylor's, there are some principles are formulated by him and summarized by him, replacing rule of thumb with science, organized knowledge make, obtaining harmony in groups action rather than discard. Okay, achieving cooperation of human beings rather than chaotic individualism, working for maximum output rather than restricted output, developing all workers to all to the fullest extent possible for their own and their company's highest prosperity. Okay, it may be noted that these basic principles Taylor's are not far from fundamental belief of the modern managers. Even though some of the techniques Taylor's and his colleagues followers develop in order to put his philosophy and principles into practice had certain mechanistic aspect. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें टेलर की द्वारा दी गई है कि कैसे उसने अलग अलग सब्जेक्ट का स्टडी करके अपनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप किए और उसमें सेंट्रल आइडिया क्या थी ये हमने यहाँ पर देखा। फिर बाद में फ्योल्स प्रिंसिपल है, नोटिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, नॉट एब्सोल्यूट, must be usable regardless of changing and special conditions. Fayol listed 14 principles based on his experience. They are summarized below. Division of work इसमें आता है, specialization follow, allows workers and managers to acquire an ability, sureness and accuracy which will increase output. More better work will be produced with the same effort. Okay, तो डिवीजन ऑफ वर्क इसमें वो
इसने ऐड किया है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? स्पेशलाइजेशन अलाउ वर्कर्स एंड मैनेजर्स टू एक्वायर एन एबिलिटी श्योरनेस एंड एक्यूरेसी व्हिच विल इंक्रीज आउटपुट। तो लाइब्रेरी में हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग सबका एक्सपर्टाइज होता है। और फिर बाद में कंपनी में भी हम देखते हैं और स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं कि अलग अलग टीचरों का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क होना जरूरी होता है, मैनेजमेंट होना जरूरी होता है। अथॉरिटी, द राइट टू गिव रीडर्स एंड द पावर्स टू एक्सटेंड ओबीडियंस आर द इसेंस ऑफ अथॉरिटी। तो उसमें अथॉरिटी आता है। Its root are in the persons and the positions. It cannot be conceived apart from responsibility. Authority right to give orders important है। कौन किसको ऑर्डर देता है और कौन किससे ऑर्डर करके आउटपुट लेता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर, जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट होती है तो आउटपुट निकलती है। सपोज लाइब्रेरी है, डिप्टी लाइब्रेरी है और असिस्टेंट लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हायरार्की होती है और लाइब्रेरी डिप्टी लाइब्रेरी को ऑर्डर करता है कि ये मुझे काम करके जाना होना चाहिए, मुझे लाइब्रेरी में ऑटोमेशन होना चाहिए। फिर डिप्टी लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी की मदद से सभी चीज़ें करता है और कर लेता है। और फिर असिस्टेंट लाइब्रेरी अपने नीचे जो स्टाफ है, अपने अंडर जो स्टाफ है क्लर्क लेवल के, टेक्निकल लेवल के, उनसे सब काम कर लेता है, करवा लेता है। तो इस तरह से ऑर्डर किस तरह से फ्लो होती है और काम किस तरह से होता है। फिर एज ए मैनेजर करके लाइब्रेरी हर वीक को एक मीटिंग लेता है, बैठक लेता है और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब रिव्यू लेता है और बाद में उनको ऑर्डर देता है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से लाइब्रेरी का काम चलता है। तो हर एक संस्था में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, तो इस तरह से और इस तरह का मैनेजमेंट होता है। ओके, तो उसमें अथॉरिटी इम्पोर्टेंट होता है। अथॉरिटी की वजह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज कंपोज ऑफ ऑडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर, आउटपुट, मार्क्स एंड रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। वे ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एनर्जी, बिहेवियर, ओके, और ऑनवर्ड मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज में जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है और वो डिसिप्लिन की वजह से आता है। सो यूनिटी ऑफ कमांड फॉर एनी एक्शन whatsoever an employee should receive order from one superior only, one person, one boss. In no case is there adoptions of social organism to duality of command. Okay, तो इस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है? वन हेड एंड वन प्लान शुड लीड a group of activities. It is necessarily that all sing same objective and that is one head one plan. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन हेड वन प्लान, सभी मिशन में, सभी एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, सभी स्टाफ में यूनिटी होनी चाहिए। सबके डायरेक्शन अलग अलग है तो कोई भी काम नहीं बन सकता। टीम वर्क किसे कहते हैं? जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया, लाइब्रेरी, डिप्टी लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरी और उसकी अंडर काम करने वाले टेक्निकल स्टाफ, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। जो ऑर्डर ऊपर से दी गई तो नीचे से नीचे तक अच्छी तरह से फॉलो करनी चाहिए विद डिसिप्लिन।
और फिर जो अपना लीडर होता है, मैनेजर होता है, उसको उसकी बात माननी चाहिए। यदि कोई उसकी बात नहीं मानता है, हर एक कोई अपनी तरह से काम करना चाहता है, अपनी तरह से काम करना चाहता है, तो हर एक की डायरेक्शन अलग होती है, तो उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है नहीं होती, यूनिटी ऑफ वर्क, जिसे टीम वर्क भी कहते हैं, वो नहीं होता है, फिर काम बिगड़ता है, काम नहीं होता, अच्छी तरह से नहीं होता, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाते हैं, फंक्शन कोलैप्स हो जाते हैं, संस्था कोलैप्स हो जाती है। ओके, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन न होने की वजह से, टीम वर्क न होने की वजह से क्या प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकता है, हो सकती है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ओके, फिर 6, subordinate individual interest to general interest. The interest of one person group in business should not prevail over that of organization. तो इसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग जो सिचुएशन है यहाँ पर दी गई है। Remuneration of personnel, the price of service render should be fair, should be satisfactory to both employee and employers. A level of pay depends on employees. So value to the organization and factors independence of the employees' worth, such as the cost of living, availability of personnel and general business conditions. Contractualizations, ये भी important होता है 8 नंबर का। Everything is that serve to reduce importance of individual subordinates role in centralizations. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, तो एवरी इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट रोल इम्पोर्टेंट होता है, एवरीथिंग दैट इज द सबऑर्डिनेट्स इम्पोर्टेंस, तो इसमें सबऑर्डिनेट होता है, उनका इम्पोर्टेंस इसमें बढ़ता है इन डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो सेंट्रलाइज में क्या होता है और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है। सेंट्रलाइज में मोनोपोली होती है, सभी जो राइट्स है, सभी जो एक फंक्शन है मैनेजर के हाथ में आ जाते हैं, फिर वो मोनोपोली करता है, उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे कि कोई आदमी होता है एज ए बॉस करके बॉसिंग करता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, मेरे अगेंस्ट कोई बोलना नहीं चाहिए। ओके, ऐसी बातें उसमें आती है, मोनोपोली कहते हैं। फिर टीम वर्क नहीं होता है, संस्था का काम नहीं होता, संस्था का काम कोलैप्स हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम सेंट्रलाइज में आती है। लेकिन जब हम अथॉरिटी का, पावर का, सभी सर्विस का डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो इसमें सबऑर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सेंट्रलाइज किया तो, यदि सेंट्रलाइज नहीं हुआ तो सबऑर्डिनेट कोई भी एक्टिविटी में अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। ऑल सिचुएशन कॉल फॉर बैलेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस, तो इसमें पोजीशन, इस पोजीशन में बैलेंस होना जरूरी होता है। और बैलेंस होना क्यों जरूरी होता है, ये हमें यहाँ पर देखना चाहिए। Then scalar chain, the chain formed by managers from the highest to the lowest is called scalar chain. The chain of command managers are the links in chain. They should communicate, and through the links may be skipped or circumvented only when superior approve and real need exists to do. तो स्केलर चेन में एक हायरार्की होती है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके, इट्स कॉल्ड स्केलर चेन ऑफ कमांड। ओके, तो कमांड कहाँ से
जो ऊपर से नीचे दी जाती है और फिर जो फंक्शन है वो कैरी आउट होते हैं। मैनेजर्स आर द लिंक्स इन द चेन, उसमें लिंक होती है। दे शुड कम्युनिकेट एंड थॉट द लिंक्स में बी स्किप्ड और circumvented only when superiors approve the real needs exist to do so. Okay. So scalar chain links may be skipped or circumvented only when superiors approve the real need exist to do so. Okay. Then order. This principle is the simple advocacy place for everyone and everyone in his place. Place for everything in place in its place. The objective of order is to avoid loss and waste. तो ऑर्डर एक एडवोकेसी इसमें होती है, जो जिस पद पे बैठता है उस पद पे उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी प्राप्त होती है और उसके अकॉर्डिंग वह फंक्शन करता है, ऑर्डर करता है और फिर उस तरह से वो जो फंक्शन है किसी संस्था में एग्जीक्यूट होता है। Then equity, kindness and justice should be practiced by person in authority to extract the best that their subordinates have to give. Okay. इसमें kindness और justice होना जरूरी होता है। Stability of tenure of personnel, reducing turnover of personnel will result in more efficiency and favor expenses. तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल भी होना जरूरी है। रिड्यूसिंग द टर्नओवर पर्सनल विल रिजल्ट इन मोर एफिशिएंसी एंड फेवर एक्सपेंसेस। ओके। इनिशिएटिव, पीपल शुड बी अलाउड फ्रीडम टू अप्रोच एंड एग्जीक्यूट आइडियाज एट ऑल लेवल of enterprise. Manager who is able to permit the exercise of initiative on the part of subordinates is far superior to one who is unable to do so. Spirit decops in unity. There is strength. Manager have the duty to promote harmony. Okay. Spirit of decops is important because in unity there is strength. जब यूनिटी होती है, टीम वर्क होता है, तो उसमें स्पिरिट क्रिएट होता है टू समथिंग ग्रेट। एंड मैनेजर्स हैव ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी, टू डिस्करेज एंड अवॉइड दोज थिंग दैट डिस्टर्ब हार्मनी। ओके। इस तरह से ये जो 14 प्रिंसिपल है यहाँ पर हमने चर्चा की और उसके बारे में स्टडी किया, तो हर एक आप उसको समझ सकते हैं। और ये सभी प्रिंसिपल कितने इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट करने के लिए, ये हमें समझ में आता है। जो कोई भी व्यक्ति संस्था में काम करता है तो उसको ये प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं उपयोग होता है, कहीं ना कहीं समझ में आते हैं या उसका वो उपयोग करते हैं। तो इसलिए फेओल का ये जो 14 प्रिंसिपल है हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से सीखना चाहिए, ताकि हम उसका सही इस्तेमाल इस संस्था की प्रगति के लिए कर सकते हैं, लाइब्रेरी की प्रगति के लिए कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की, 14 प्रिंसिपल यहाँ पर हमने देखा। So we have already seen that there are several definitions given by expert to explain the meaning and scope of management. तो बहुत सारी
डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी, अलग अलग थिंकर है, अलग अलग एक्सपर्ट है, अलग अलग प्रैक्टिशनर है, उन्होंने मैनेजमेंट का स्कोप और मीनिंग बताने का प्रयास किया है। वन वे इज टू व्यू मैनेजमेंट एज अ सेट ऑफ कॉमन प्रोसेस और फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक प्रकार की कॉमन प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस होता है और फंक्शन उसमें होते हैं। एक संस्था में जब हम विचार करते हैं तो कोई भी संस्था में कभी भी एक फंक्शन नहीं होता या एक प्रोसेस नहीं होती है। जैसे लाइब्रेरी का ही हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल, तो उसमें कितने फंक्शन होते हैं इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की। जैसे कि कैटलॉगिंग होता है, एक्विजिशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सर्किलिंग, सीरियल और रेफरेंस, और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्शन, रिएक्शन, फंक्शन, सर्विस, एग्जीक्यूट यहाँ पर होता है। ओके, कहने का मतलब जब संस्था का उदाहरण आता है तो उसमें कई प्रकार की प्रोसेस और फंक्शन होता है, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। इन सबका मैनेजमेंट होना जरूरी होता है। कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के आड़ ना आए, ताकि जो लाइब्रेरी का काम है और किसी भी संस्था का काम है वो बंद हो सके। ओके, तो हर एक चीज़ अपनी तरीके से होनी है, हर एक फंक्शन, हर एक सेक्शन का काम अपने फंक्शन से होना जरूरी है। और यदि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में व्यत्यय क्रिएट करता है तो वहाँ पर मैनेजमेंट कोलैप्स हो जाता है। तो सभी सेक्शन में, फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और यही हमें मैनेजमेंट सिखाता है। ओके, वन वे इज टू व्यू मैनेजमेंट एज, देखो, व्हेन कैरिड आउट वेल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब मैनेजमेंट वेल होता है तो कोई भी संस्था या लाइब्रेरी इफेक्टिव और इफिशिएंटली काम करती है। मैनेजमेंट ही कोलैप्स है तो कोई भी संस्था या कंपनी या लाइब्रेरी डेवलप नहीं हो सकती। A function is a type of work activity that can be identified and distinguished from other work. Experts have identified several managerial functions as important elements of management, while Newman and Summer have identified 4 functions, namely organizing, planning, leading, and controlling. Henry Fayol has recommended 5 basic functions, namely planning, organizing, commanding, and coordinating and controlling. Okay, तो इस तरह से अलग अलग फंक्शन यहाँ पर हमें दिखाई दिए और उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो हेनरी फेयोल हैज़ रिकमेंडेड 5 बेसिक फंक्शन, उन्होंने 5 बेसिक फंक्शन यहाँ पर दिए हेनरी फेयोल ने। वो कौन से है यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार अंडरलाइन करके आपको हाईलाइट हो जाएगा। ओके, बाय हेनरी फेयोल। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग, चौथा है कोऑर्डिनेटिंग, पांचवा है कंट्रोलिंग। ओके, इस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इसमें आता है। और ये किस तरह से फंक्शन करता है ये भी हमें यहाँ पर सिखाता है। मोस्ट ऑथर present the following 5 as the essential function: planning, organizing, staffing, directing, controlling,
Luther Gulick and L. Urvik have coined and acronyms for 7 function named POSTCARP. Okay, so which stand for planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. तो पोस्ट का भी इसमें आया है. मोस्ट ऑफ द ऑथर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 5 एज इसेंशियल फंक्शंस. प्लानिंग उसमें आता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, सो लूथर गुलिक एंड Urvik have coined acronyms for 7 functions, namely POSTCARP, which stand for planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, etc. Some of these functions are presented and discussed. इसमें कुछ फंक्शन प्रेजेंट किया है, डिस्कस किया गया है. ओके, पोस्टकॉर्प विच स्टैंड फॉर प्लानिंग. पोस्टकॉर्प में कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं. प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग. कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग ये सब आता है. ओके, तो जैसे हमने 5 फंक्शन देखे फेयोल के, उसमें कौन से आते हैं इसके बारे में चर्चा की, और गुलिक और एल उर्विक ने कौन सा एक्रोनिम्स यहाँ पर दिए हैं, उसमें कितने आते हैं, 7 आते हैं, पोस्टकॉर्प नाम से वो जाने जाते हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दे आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंटली. तो सबका एक अपना अर्थ है, सबका एक अपना फंक्शन है, सबका एक अपना इम्पोर्टेंट है. भले ही ये एक दूसरे के समान लगते हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन इनके द्वारा होते हैं. The views of this approach is that an organization is total system and these function elements are interrelated और interdependent. तो ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और स्वतंत्र भी है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं. द मेजर एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग एंड डिस्कसिंग दिस फंक्शन. तो इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है कि इसका स्टडी हम सेपरेट करें ताकि हमें उसके इंडिविजुअलिज्म, स्वतंत्र मीनिंग क्या है, स्वतंत्र फंक्शन क्या है, ये समझ में आ सके. ओके, सो द मेजर एडवांटेज सेपरेटिंग एंड डिस्कसिंग दिस functional elements individually is that this provide to helpful means to examine the various threads that are interwoven with fabric what managers actually do. तो managers actually क्या करता है इस अलग अलग फंक्शन के द्वारा. First one is a planning. So by the name it indicates itself that what is meaning by the planning. When we do plan for something to do, that is called the planning. This is the simple definition we can make without tension, without hurdle. तो ऐसी डेफिनेशन हम इजीली बना सकते हैं कि कुछ काम करने के लिए प्लान करना, उसे हम प्लानिंग कहते हैं. So planning is a bridge taking us from where we are to where we want to reach. So planning help to us to reach from one place to another place. Okay, it will direct us that where we want to go from where. हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसके लिए हमें प्लानिंग एक दिशा देने का काम करती है. ओके, और इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं. हमको
कहीं जाना है, जर्नी करना है, प्रवास करना है, तो हम उसकी 1-2 दिन पहले प्लानिंग करते हैं। उसमें टिकट बुक करना, सभी कपड़े बैग में भरना, ओके, खाने पीने का सामान रखना, और अपनी जो मेडिसिन है जो लगती है लोगों को वो ही साथ रखना, ओके। और जहाँ हमें घूमने जाना है, फिरने जाना है, उस पर क्या क्या चीज़ें देखना, क्या क्या नहीं देखना, कहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट करना, ये सभी चीज़ें प्लानिंग के साथ हम करते हैं, ओके। तो इस तरह से जब हम घर से निकलते हैं तो हम हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें चेन्नई जाना होता है और हम दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ लेते हैं या ट्रेन पकड़ लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमें जहाँ जाना होता है वही ट्रेन या बस हम पकड़ते हैं, यहीं से प्लानिंग शुरू होती है, फिर अगली प्लानिंग स्टार्ट होती है। सो इन अनदर वर्ड, it is in process of determining in advance what should be accomplished, how to do। एडवांस में जब हम सोचते हैं, जैसे कि जर्नी का प्लानिंग हम करते हैं, घूमने का प्लानिंग हम करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना और क्यों करना कैसे करना, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। इन अनदर वर्ड, इट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल, objective, target, assessing the futures, permission, generating, evaluating alternatives, selecting programs, project, of course, estimating resource, preparing the plan, document with derivate plans, implementing the plans, okay। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस है एक प्रकार की, जिसमें गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है, फ्यूचर, प्रीमाइसिंग होता है, जनरेटिंग, एवैल्यूएटिंग, अल्टरनेटिव, इसमें आते हैं सभी, ओके। तो 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग आर इसमें आते हैं। पर्पज ऑफ एवरी प्लान एंड ऑल डिराइवेटिव प्लान इज फैसिलिटेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज purposes and objective, okay। So planning is the first function, logically preceded, and the efficiency of plan is measured by the amount it contributes to the purpose and objective offset by the cost of others unsought consequences required to formulate, operate. In other words, planning is characterized by its primacy, efficiency, contribution to the purpose, objective, and all pursuedness. Some types of plan usually developed and operated include objective। तो इसमें सम प्लान के साथ होता है, प्लान के साथ आता है सभी चीज़ें, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट इसमें आता है, ओके। The process of developing plan consists of few logical basic steps, being aware of opportunity and SWOT। उसमें SWOT एनालिसिस के साथ हम ये सभी बातें करते हैं यहाँ पर। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है SWOT एनालिसिस के साथ, स्ट्रेंथ आता है, वीकनेस आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, थ्रेट्स आता है। एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक और क्लियर ऑब्जेक्टिव, इसमें आते हैं। थर्ड लॉजिकल स्टेप इज प्लानिंग, और ये थर्ड लॉजिकल स्टेप होती है जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, ओके। तो प्रीमाइसिंग मीन्स टेकिंग नोट ऑफ प्लानिंग assumptions, establishing complete premises and keeping them up to date is difficult and complex task। The success of plan depends on the degree of accuracy in premising। तो हर एक काम में अप टू डेट होना चाहिए, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क होना चाहिए। द सक्सेस ऑफ प्लान डिपेंड्स ऑन द डिग्री of accuracy in premising। The fourth step is to search for
and examine alternative courses of action. The step is immediately followed by systematic evaluations of alternative courses with the purpose of selecting the best courses of action. In the next step, the seventh step is formulating smaller derivative plans. The final step is to numberize plan along with derivative plans by converting them into budgetary figures. Many scientific techniques and models are available to determine the goal and objective assess features. तो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है, लेकिन प्लानिंग का एक सिंपल मीनिंग हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन एडवांस वी कैन वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। एडवांस में हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। ओके, प्लानिंग शुड स्टार्ट विथ वेयर वी आर। प्लानिंग जहाँ पर हम होते हैं वहीं से स्टार्ट होती है प्लानिंग, उसे कहते हैं, rather than with where you want to be। इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, हर एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। should agree use consistent planning premises, flexibility must be built into the plan, the plan must be closely integrated, the plan should be documented and distributed to all the members of the management team। Planning has value only if it is transformed into action. Plan should be reviewed periodically throughout the year. Input to plans have to come from every unit of the organization to ensure the involvement and participation of the staff working at the operations supervisory level beside the top management, which is more directly connected with the planning process responsible for it। तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। So plan document provides a directive course of executive action incorporating every aspect of the development of organization। Policy are framed to help implementation process। Every plan has to fit into time frame, annual, 5 years, long range perspective, and also has to be flexible to recommendate any anticipated change at any points of time। Okay, the significance advantage of planning are it offset uncertainty change, provides framework for executions and directions, focus attention on objective, improve service, lead to operations and facilitate control। तो ये सभी चीज़ें सभी बातें उसमें आती है। इस तरह से हम जब प्लानिंग के साथ कोई चीज़ करते हैं तो प्लान होती है, और विदाउट प्लानिंग के साथ करते हैं तो अनप्लान होती है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है प्लानिंग का? प्लानिंग के साथ यदि कोई चीज़ हम करते, कोई एक्शन हम करते, कोई काम हम करते, कोई फंक्शन हम करते हैं, तो जैसा हमने सोचा वैसा वो होता है विदाउट हर्डल। कोई भी दिक्कत उसमें आती नहीं, अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट होता है। और फिर अनप्लान के साथ हम करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो काम वहाँ पर रुक सकता है या बंद हो सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इफ़ वी डू each and every activity with plan, then it will be success, then it will become success। if we don't the plan, then it will be unsuccess। okay, this is the difference। so what we do the plan, तो इसलिए हम प्लान करते हैं। इंश्योर रैशनल एंड इफेक्टिवनेस डेवलपमेंट इसमें होती है। परमिट द एंटिसिपेशन फ्यूचर रिसोर्स नीड होता है। ब्रिंग द स्किल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स टू द प्लानिंग प्रोसेस इसमें होता है। ओके, तो
हर एक चीज़ हम करते हैं तो हर एक चीज़ इसमें करने का प्रयास करते हैं, ओके, प्लानिंग के साथ। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग पीपल्स एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस आता है और प्रोसेस आता है। ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजिंग ये शब्द आता है, यानी कि संस्था चलाने के लिए हम क्या क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कौन सी चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर नाटक प्रेजेंट करना है, ओके, तो हमें सभी चीज़ें लगानी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, सेटअप तैयार करना पड़ता है, एक्टर तैयार करने पड़ते हैं, और फिर एक डायरेक्शन ऑर्गेनाइज करके हम वो प्लान और वो एक्ट वहाँ पर प्ले करते हैं, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है। और फिर आगे जाके है जब हम ऑर्गेनाइज करना, यानी कि क्या सभी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और जो पीपल इंसान संस्था में काम करते हैं और जो रिसोर्स है उनमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरी स्टाफ और बुक कलेक्शन, बुक रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज, उसमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होना आवश्यक है, ओके। जब ये ऑर्गेनाइजिंग होता है तब सभी चीज़ें अच्छी तरह से होती है। एनालाइजिंग थ्री एंटायर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू homogeneous types of work, jobs, sorting and grouping the resulting works and jobs into logical structure. So assigning these activities to specific positions and person इसमें होते हैं, specific position person इसमें होते हैं, providing means for coordinating the efforts of individual groups इसमें आता है। Terms organization refer to both process of organizations and result of the process. Organization refer to the structure or result from assembling resource necessary to achieve the organization objective। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसमें रिसोर्स होते हैं अलग अलग और ऑब्जेक्टिव होता है, तो उससे हम किस तरह से आउटपुट निकालते हैं। आइडेंटिफाइंग द ग्रुपिंग वर्क, और जो ग्रुप में वर्क होता है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, और डेफिनेटिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इसमें आता है। इस्टेब्लिशिंग एक्टिविटीज़ अथॉरिटी रिलेशनशिप इसमें आता है। अदर वर्क इसमें आता है। और ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन इसमें आता है। एक्टिविटीज़ अननेसेसरी टू अचीव तो ऑब्जेक्टिव आता है। एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू वर्किंग डिवीजन, सो डिपार्टमेंट एंड अदर आइडेंटिफाइबल primarily by clustering similar related duties। तो अलग अलग जो ड्यूटीज होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं संस्था में, उनमें हम एक कोऑर्डिनेशन लाना चाहते हैं, एक हारमोनी लाना चाहते हैं, और किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फंक्शन के द्वारा, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बनने का काम करती है, इफेक्टिव काम करने का काम करती है। So the result is network of interdependent units. Organizational structure usually comprises departments, divisions, sections, units, or cells obtained on the basis of divisions of works and jobs. These structural patterns reflect horizontal and vertical positions। तो ये अलग अलग जो फंक्शन होते हैं, अलग अलग सभी चीज़ें संस्था में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, तो दोनों लेवल से हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेवल से, ओके। So these structural patterns reflect horizontal and vertical positions, indicating distributing of work, authority and responsibility, span of control, natures of duties।
और फ्लो फंक्शनल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स। तो इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेशन होता है और इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड टू डेवलप टेक्निक फॉर एक्टिविटीज एंड वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क जॉब एनालिसिस, जॉब डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, मॉडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिमिलर अदर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती है, जैसे कि वर्क आउटपुट क्या है, इवैल्यूएशन करना, वर्क इवैल्यूएशन करना, डिसिप्लिन, मैकेनिज्म, स्मूथ फंक्शनल पॉइंट, कोऑर्डिनेशन पॉइंट, सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक होती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी की जाती है। सो स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड टू डेवलप टेक्निक फॉर एक्टिविटीज एंड वर्कलोड एनालिसिस। अलग अलग एनालिसिस किए जाते हैं, जॉब एनालिसिस, वर्क एनालिसिस, ओके। Definition and descriptions, model of organizational structure and similar others. Organization charts, blocks, diagram, workflow charts, etc. Portray the functions of the organization vividly, indicating its managerial strength. Okay. Some basic principle of organizing are listed below. तो इसमें अलग अलग बेसिक प्रिंसिपल लिस्टेड किए जाते हैं।